Alright everyone, so here we have some practice questions of chapter number 1, especially from the topics of base units and uncertainty. So here we have the first one. Complete the table 1.1 to show the name and symbol of each prefix and the corresponding power of 10, multiple or submultiple. Okay, so we start off with the tera, represented by a capital T, and the exponent or the multiple of 10 for tera is 10 raised power 12. Okay, so our prefixes, the prefixes in the A-level physics syllabus, they start from the maximum one is tera, which is 10 raised power 12, so million times million. Okay, then we have the next one. So in this one you have to list the prefix for which the exponent is 10 raised power minus 12, for which the multiple of 10 is 10 raised power minus 12. So this is the smallest one that is there in our syllabus, which is pico. Underline all the units that are SI base units. Ampere is a base unit. Coulomb is not a base unit. It is a derived unit. It is derived from amperes and second. Meter is a base unit. Newton is not a base unit. Okay, then we have this question. Alright, so for the part C, we are given with the formula. That is a formula for voltage difference between two ends of a uniform metal wire. And the quantities are given. D is the diameter, I is the current, L is the length, rho is the resistivity of the metal. Then the percentage uncertainties of all those physical quantities are given in the table. You can see over here. What we need to find is the quantities listed in the table 1.2 have values that are used to calculate rho as this much. For this value of rho, calculate the percentage uncertainty. Now the thing is, in order to calculate the percentage uncertainty, you may not even need this information, the value of rho. All you need is to rearrange the formula in terms of rho. So I'm going to do it over here. Okay, and after that, once you have rearranged it, once you have made rho the subject, you can get rid of the constant numbers. Pi is a constant number, 4 is a constant number. Now these two are not there in the equation because for the percentage uncertainties, we don't need the constant numbers. So what are we left with? We are left with V, we are left with L, we are left with I, we are left with D square, which is D times T. So when we gotta add all the percentage uncertainties of these quantities, because when the quantities are being multiplied or divided, then the rule is you add the percentage uncertainties. And matter of fact, in the question they have asked themselves that calculate the percentage uncertainty. So you add the percentage uncertainty of V, potential difference. V is the potential difference, L, I, and twice the percentage uncertainty of D. So what do we get from here? V is 3.5% plus L is 2.5% plus I, which is 2.0%, plus the last one, D square, it would be 6% because it is D squared and this is the percentage uncertainty of D only. So you have to add it, either you add it twice or you just multiply it by 2. So what do we get from here? We get 6.0%. Alright, and once you add all of them, all the percentage uncertainties, what do you get? 14. So after adding all of them, you'll be getting 14. So I'm going to write the final answer over here, 14%. And the percentage uncertainty is written in two significant figures because the minimum values of percentage uncertainties were given in two significant figures for all of them. Matter of fact, for all of them, let alone the minimum one. Okay, let's move. Take a look at the next part. Calculate the absolute uncertainty. In order to calculate the absolute uncertainty, you first need to find the principal value. And matter of fact, you don't need to find it because it's given already in the question that the value of rho, once calculated, it comes out to be 4.1 into SF. It comes out to be 4.1 into 10 to the power minus 7
ohm meter, the value of resistivity. So we know how much uncertainty is there in this one. It is 14%. And how much would it be in absolute terms, or as an absolute uncertainty? We can find 14% of this value. So if you find 14% of this value, what do we get is into 10 to the power negative 8. Okay, so what you can do is you see the so you can round it off to 1 SF or 2 SF, and that would be written as 6 into 10 to the power negative 8. Now the thing is, some of you might be wondering why we have not equated the multiples of 10. I mean, I explained in the video that if you have to write the uncertainty with the principal value, then you need to ensure that the principal value and the uncertainty have equal number of have the same exponent of 10. But that's not the case here. And the reason is because in this question, in this part, you're not writing the absolute uncertainty with the principal value. If you were writing the absolute uncertainty with the principal value, then you need to be careful with all those rules. Achha, then we have the next one. Okay, use your answer to show that the SI base units of energy are this. देखो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी और वर्क डन यूनिट सेम होते हैं. जो यूनिट्स एनर्जी के हैं वही वर्क डन के होंगे. तो ये वर्क डन लिखो या एनर्जी लिखो, फॉर्मूला भी आपने क्या लिखा है? आपने लिखा है एनर्जी या वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट. यूनिट सेम होगा. अब याद करो फोर्स का क्या यूनिट हमने मेमोराइज किया हुआ है? केजी. वेरी गुड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और डिस्टेंस वो सिंपल हो गया, कितना मीटर्स. अब इन दोनों को कंबाइन करना है, ये पूरी चीज़ को कंबाइन करना है. देखो किलोग्राम एक ही जगह पे है, कहीं और तो नहीं है. वेरी गुड, ये हो जाएगा m स्क्वायर s-2. क्या यही चीज़ बन गई जो उसने कही थी? ठीक हो गया. अच्छा, लेट्स टेक अ लुक एट द नेक्स्ट वन. अब आपने फाइंड करने हैं डिटरमिन द बेस यूनिट्स ऑफ सी. देखो ये फॉर्मूला है, उसमें सी एक आपकी चीज़ आ रही है. पहले मैं सी को हाईलाइट कर दूं. ये आ रहा है सी आपका. इसके बेस यूनिट्स फाइंड करने हैं. व्हेन यू गिवन ए क्वेश्चन लाइक दिस, उसमें आपने वैल्यूज़ नहीं इंसर्ट करनी होती, और ना ही आपको वैल्यूज़ गिवन है कि ई की वैल्यू आपकी 24 जूल्स है या कुछ भी नहीं. आपने यूनिट्स इंसर्ट करने होते हैं. तो सबसे पहले सी को क्या करेंगे? अच्छा, इसके बाद जब आपने सब्जेक्ट बना लिया, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि आपने इसको, इसमें से कांस्टेंट नंबर्स को यू नीड टू थ्रो देम आउट ऑफ द विंडो. अब कौन सा है आपका कांस्टेंट? के जी m2 s-2. इसका लिख लिया. अब L है आपकी लेंथ ऑफ द रॉड. तो लेंथ का यूनिट क्या होगा? मीटर. ठीक है, सिंपली मीटर हो गया. अच्छा, उसके बाद नीचे एरिया. ये ए क्या है आपका? एरिया. तो एरिया का मैंने बताया था, एरिया आपका इस तरह होता है 3 मीटर्स बाय 5 मीटर्स. तो दो चीज़ें, दो दफ़ा लेंथ आ रही होती है. सो ये वुड बी m2 मीटर स्क्वायर. अच्छा, फिर आपका टेम्परेचर, ये पूरी ब्रैकेट में है टेम्परेचर. T1 माइनस T2 यूनिट एक ही दफ़ा लिखना होता है. ठीक है, अगर प्लस हो रहे हो माइनस हो रहे हो, यू राइट यूनिट ओनली वन टाइम, ओनली वंस. सो टेम्परेचर का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है ना, वो केल्विन होता है. एक डिग्री सेल्सियस भी होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट भी, बट द स्टैंडर्ड वन SI बेस यूनिट इज़ केल्विन. तो ये केल्विन, इस पूरी चीज़ की जगह केल्विन आ गया. टाइम का
टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट होता है आपका एस। अच्छा, आप देखते हैं जो सिमिलर चीज़ें हैं ना ऊपर नीचे, उनको क्रॉस आउट कर देते हैं जो बिल्कुल सेम हो। देखो वो के आपका केजी किलोग्राम्स वाला है, ये कैपिटल के केल्विन है, इनको नहीं आपस में हम कुछ कर सकते। ऑलराइट, सो लेट्स चेक इट आउट। ये जो आपका मीटर स्क्वायर था, ये मीटर स्क्वायर और ये मीटर स्क्वायर, इसको तो कट कर सकते हैं कि नहीं? सेम है आपका। अब देखो जो चीज़ आपकी कहीं भी नहीं आ रही उसे तो लिखे ना, फॉर एग्जांपल केजी, और एक मीटर्स रह गया आपका एम, नीचे के बैठा हुआ है आपका, डाउन स्टेयर्स कैपिटल के बैठा है, ऊपर आके कितना हो जाएगा? माइनस में हो जाएगी पावर। देखो नीचे अगर पावर नहीं लगी हुई सही, इसका मतलब होता है इसकी पावर 1 है। अच्छा, अब सारा आपका रह गया सेकंड्स पे। सो यहाँ पे आपका s -2, हाँ ऊपर -1 आएगा, तो टोटल कितना हो गया फिर? नीचे s1 है, इसने ऊपर आके -1 होना है। हाँ 3 विद द नेगेटिव साइन, s -3। ठीक है, सो ये कैसे हुआ? s -2 पहले था और -1 और आके हो गया, तो s -3 टोटल। ओके, सो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 12। It is from the PAL paper of 2020. I use the expression of work in terms of force to show that the SI base units of energy are kg meter square s minus 2. So वर्क का आपका जो फॉर्मूला था अभी हमने यूज़ किया एक और क्वेश्चन में, वर्क इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। अब फोर्स के जो बेस यूनिट्स हैं, दे कीप आस्किंग फॉर फोर्स, कितनी दफ़ा फोर्स का पूछ लिया। सो व्हाट डू वी हैव फॉर फोर्स? ओके, वेरी गुड। और डिस्टेंस? मीटर्स। और अब ये कितना हो गया टोटल? ओके, वेरी गुड। ठीक है, ये आपका यहाँ पे आ गया। अच्छा, देन वी हैव द नेक्स्ट वन। इसी तरह का क्वेश्चन है बेस यूनिट्स वाला। आपको एक फॉर्मूला गिवन है एंड देन यू आर आस्क्ड टू फाइंड द बेस यूनिट्स ऑफ किसके? सी के। तो सी किधर है आपका? सी इधर बैठा हुआ है। अब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सी को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, जगह चेंज करनी पड़ेगी सी की। तो सी की जगह ना हम ई के साथ चेंज कर देते हैं, बाकी एवरीथिंग वुड बी देयर एज इट इज़। डिवाइडेड बाय 2e। अब बेस यूनिट्स इंसर्ट करेंगे, उससे पहले व्हाट डू वी डू विद द कांस्टेंट नंबर्स? एग्जैक्टली, 2 को यहाँ से हम कट कर देते हैं, कांस्टेंट नंबर्स का कोई काम नहीं है इसमें। अब Q जो आपका चार्ज है, इसका बेस यूनिट कितना है आपका? और व्हाट इज द बेस यूनिट? वेरी गुड, AS। तो ये Q का स्क्वायर है, तो AS का भी आपका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय E विच इज़ द एनर्जी। इसके बेस यूनिट्स क्या हैं? अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किए हैं, kg m2 s -2। ठीक है, अब ये जो AS का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये A का भी स्क्वायर हो जाएगा, एम्पेयर्स का भी स्क्वायर हो जाएगा, और S का भी स्क्वायर हो जाएगा, सेकेंड्स का भी स्क्वायर हो जाएगा, और kg m2 s -2। अब देखो जो चीज़ें आपकी कहीं भी नहीं आ रही उनको तो एज इट इज़ लिख दो ना।
आई मीन सिर्फ एक चीज़ है जो आपकी डबल आ रही है, सेकंड्स इधर भी आ रहे हैं इधर भी आ रहे हैं, उसके अलावा एवरीथिंग इज देयर ओनली वंस. सो A2 एज इट इज़. अब KG ने आपका डाउन स्टेयर से ऊपर आना है, डिनोमिनेटर से ऊपर आना है, तो क्या होगा? -1. और मीटर स्क्वायर ने M2 ने नीचे से आना है, तो वो कितना हो जाएगा? -2. वेरी गुड. अब देखो S में बच्चे मिस्टेक करते हैं. अब ऊपर है आपका S2. एग्जैक्टली 4 हो जाएगा, क्योंकि -2 नीचे से आके आपका +2 हो जाएगा, सो S 4 हो जाएगा. Okay, let's take a look at the last part of it. Measurement of a constant current in a wire are taken using an analog ammeter. ठीक है, एनालॉग एमीटर आपका इस तरह से जो होता है, उसके ऊपर डायल बना होता है, नीडल होती है, वो उसके ऊपर नंबरिंग से आपका रीड करना पड़ता है. तो डिस्प्ले पे रीडिंग नहीं आती डिजिट्स में, आपने स्केल से ऊपर रीड करना होता है. For those measurements, describe one possible cause of random error. देखो random error उसमें एक ऐसे आ सकता है कि you should be reading the scale perpendicularly. आप अगर किसी एंगल से रीड कर रहे हो, आप प्रॉपरली आपने नहीं पकड़ा हो, देखो यहाँ पे अगर एमीटर है तो आप इधर खड़े होके, यहाँ पे खड़े होके इस तरह किसी एंगल से उसे देख रहे हो, तो उस केस में भी जो आपकी रीडिंग सही नहीं आएगी, उसमें पैरेलैक्स एरर हो सकता है. सो इस एरर को हम कहते हैं पैरेलैक्स एरर फॉर रीडिंग द स्केल एट एन एंगल नॉट परपेंडिकुलरली. किसी एंगल से देख रहे हो परपेंडिकुलरली, वैसे है तो एक एंगल ही, लेकिन इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट मीन्स कि आप जहाँ पे रीडिंग है उसको बिल्कुल परपेंडिकुलरली उसके सामने आके देख रहे हो. अच्छा, सिस्टमैटिक एरर. सिस्टमैटिक एरर यानी आपके इंस्ट्रूमेंट में कोई अगर मसला आ गया, तो देखो आपका वो एमीटर जो है, अगर आपने उसको अभी यूज़ नहीं किया, उसमें कोई करंट नहीं है, तो उसका स्केल भी 0 से स्टार्ट होना चाहिए, 0 पे होना चाहिए. तो अगर वो 0 से स्टार्ट नहीं होगा तो उसमें 0 एरर हो सकता है, या उसमें जो कैलिब्रेशन उन्होंने लाइंस लगाई हैं, मसलन इक्वली स्पेस लाइंस लगानी होती हैं, 0 1 2 3, और हो सकता है 4 की लाइन उन्होंने करीब लगा दी हो, कैलिब्रेशन उसकी गलत कर दी हो. सो 0 एरर भी आपका हो सकता है, कैलिब्रेशन रॉन्ग कैलिब्रेशन भी हो सकती है.